Hello everyone there, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter 3rd, that is impressive web designing. In last lecture we have studied the tag which is called as a form tag. There we have seen attributes of form tag, input tag, attributes of input tag. Then lastly we have seen text area tag and select an option tag. That was the last part of our impressive web designing chapter. Today we are going to solve some forms, means some outputs I am going to show you, and depending upon that you have to write coding for the form. Now actually in the last lecture we have just gone through the theory part, means what tags are used, what attributes are used, but today we are going to actually do it in practically. Okay, so you'll come to know how to use each and every attribute and the tag of the forms. So let's see the first question. So see, this is one of the output which I have drawn for you. Here, this your output should look in this way. Okay, this is one application form you have to create. In that you want name, you want birth date, you want gender, you want hobbies. Okay, then you have to at last submit the form, or if you want to cancel the form, you can cancel the form. Sorry, we are talking about this. Okay, so this form we want to do coding for this form. ये फॉर्म के लिए आपको कोडिंग परफॉर्म करना है. नाउ लिसन यो, कोडिंग आप एक्चुअली किसके लिए लिखते हो वो भी आपको पता होना चाहिए. Just a heading, you can give this has a heading h1. Okay, enter your name colon, ये जो लिखा हुआ है ये सब आपको as it is लिखना है. आपको कोडिंग एक्चुअली ये बॉक्सेस के लिए बनाना पड़ता है. फॉर दिस बॉक्स यू हैव टू राइट द कोडिंग. ऐसा बॉक्स आने के लिए मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये ये नेम टाइप करने के लिए आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, राइट. सो फॉर दैट पर्पस यू वांट टू राइट कोडिंग ओनली फॉर द बॉक्सेस और द सर्कल्स विच हैज़ बिन डिस्प्लेड. सो फॉर दिस थिंग, फिर आपके लिए आपको देखने के बाद ये ऐसे कैसा लिखना है, ये जब आएगा तो इसके लिए आपको कोडिंग लिखना है इनपुट टाइप टेक्स्ट like this. Okay, then similarly for birth date you are going to use now we are going to use in 11th standard text only, but in the 12th standard we are going to see the different tag for this. Okay, now gender has it is आपको लिखना है. ये सर्कल के लिए आपको कोडिंग लिखना है. ओके, सर्कल के लिए आप दिस इज अ रेडियो बटन, तो रेडियो इनपुट टाइप रेडियो हो जाएगा. बाद में आपको मेल वैसे ही लिखना है. फिर से सर्कल आया, फिर से सर्कल के लिए आपको कोडिंग लिखना है इनपुट टाइप रेडियो. ओके, दिस इज फीमेल. देन हॉबीज ऐसे कैसे, फिर ये चार चेक बॉक्सेस से इसके लिए हम लोग कोडिंग लिखेंगे. सी व्हेन वी विल डू कोडिंग यू विल कम टू नो हाउ टू डू इट. ओके, so we'll just write coding for this. Okay, what I will do, I will keep this mini in minimum size. Okay, so that we can see the coding, we can write the coding as well as notepad also we will open. Okay, this is a notepad. I will just minimize this notepad so that you can see the form, and then we will write the coding. Okay. I hope this is clear to you now. Okay, okay, okay. Now see, first thing, first always what we do, we always write HTML. Okay, so I will just write first HTML, then I will write what? I will write head and body, head and title I'm not writing today, I'm writing body. Okay, then what I will write? I will write form. आप पहले form लिखो या पहले H1 लिखो. आप this you want to write application form. Application form is just a heading. So you can give inside the form or outside the form will do. But what we will do, we'll just write form because ये form के अंदर आ रहा है, तो I will just write form. Okay, I'm simply writing form. I'm not giving any attribute. मैं कुछ भी attribute नहीं दे रही हूँ form को. I'm simply writing form. Okay, then what I will write? I'll write H1. मुझे heading देना है और वो भी मुझे center में align करना है form के. So I'll write here align, A align, G N align is equal to inverted comma C N T R center. Then what I will write? I'll write this application form heading. Okay, application form. Then I will close this H1.
एंटर। नाउ सी दिस एंटर योर नेम, ये आपको सिंपली ऐसे ही लिखना है। ओके, एंटर योर नेम, यू आर राइट, सिंपली टाइप करना है आपको, एंटर व्हाट योर नेम। ओके, आई जस्ट राइट इन सिंपल वे, एंटर योर नेम एंड कोलन भी दिया है तो कोलन भी। ओके, नाउ ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है मुझे, तो इसके लिए मुझे कोडिंग लिखना है। ये सेम लाइन पे कोडिंग लिखो या नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो आने वाला यहाँ पे ही है क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक दोगे और बाद में आप इनपुट टाइप लिखोगे, अगर यहाँ पे ब्रेक देंगे और फिर इनपुट टाइप लिखेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। लेकिन मैंने अगर इनपुट टाइप यहाँ लिखा या फिर नीचे लिखा तो भी वो उसके सामने ही आने वाला है क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आई एम दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, सो मुझे क्या लिखना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, देन आई टोल्ड यू नेम इज कंपलसरी, तो आपको नेम इसको कंपलसरी देना है। कुछ भी नाम दे सकते हो, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट यू कैन गिव। ओके, जस्ट आई विल राइट T1. ओके, आई विल राइट T1 फॉर टेक्स्ट बॉक्स, any name you can give. Now we are not going to use any attributes. यहाँ पे मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे इनपुट टाइप के लिए। सी, आपने इनपुट का टैग पढ़ाया था, इनपुट टैग इट इज़ यूज इनसाइड द फॉर्म टैग। ओके, तो इनपुट का एक एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया टाइप। अगर टाइप नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइप यूज़ करना है, इसलिए टाइप इज कंपल्सरी एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट, बिकॉज टाइप से ही पता चलेगा कि कौन से टाइप का कंट्रोल हमको यूज़ करना है। टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इसलिए टाइप कंपल्सरी है। फिर नाम देना है आपको कंपलसरी, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और जो एट्रीब्यूट्स है मैक्स, लेंथ, साइज, ये आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही यूज़ कर सकते हो। चेक ये एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ आप रेडियो बटन और चेक बॉक्स के साथ ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई विल सी दैट आफ्टरवर्ड्स। पहले फर्स्ट सिंपल वे ये करेंगे। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, नेम T1 लिखा। ओके, तो ये कोडिंग मैंने लिख लिया इस बॉक्स के लिए। वी हैव रिटन दिस इनपुट टाइप फॉर दिस बॉक्स। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट नाउ वी कैन गिव द ब्रेक। ओके, ब्रेक आई विल राइट, यहाँ पे लिखो या नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनीवेयर यू कैन राइट ब्रेक। ब्रेक मीन्स जहाँ पे ब्रेक दिया है उसके बाद ही वो आएगा। आई एम गिविंग 2 ब्रेक सो दैट इट लुक्स गुड। ओके, देन एंटर, नेक्स्ट क्या लिखा है, एंटर योर बर्थ डेट। ओके, बर्थ your birth date colon, now input type again you want to write input। यहाँ पे भी हम लोग ये जो बर्थ डेट लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से यूज़ कर रहे हैं, so I'll write input type text again, then again I'm going to give the name, give the name here, I'm going to give the name T2। Already T1 has been given, so I'm not going to give the same name, T2 I will give। Again I will give 2 breaks। ब्रेक्स, एक ब्रेक देंगे तो एक के नीचे एक दिखेगा तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, तो एक वो दोनों के बीच में डिस्टेंस आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 2 ब्रेक्स। नाउ वी विल राइट नेक्स्ट वन, इनपुट टाइप। अभी मैंने ये बॉक्स के लिए भी कोडिंग लिखा, नाउ वी आर कमिंग हियर जेंडर। तो चलो जेंडर हैज इट इज लिख लेते हैं, जेंडर कोलन। ओके, यहाँ पे अभी ये सर्कल है, इसके लिए मुझे लिखना है कोडिंग। ये सर्कल होगा तो क्या होगा, इनपुट टाइप रेडियो, क्योंकि इसको हम लोग रेडियो बटन बोलते हैं। तो इनपुट टाइप, टाइप इज कौन सा आएगा, टाइप रेडियो। ओके, इट इज अ रेडियो बटन, सो व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट रेडियो, नॉट बटन, आई विल जस्ट राइट रेडियो। ओके, बटन नहीं लिखना है आपको, रेडियो लिखना है। एंड गिव द नेम। नाउ योर द नेम इज वेरी कंपल्सरी, नेम इज कंपल्सरी इन एवरी type I have told you। Okay, so now but you have to remember one thing very carefully for radio button and checkbox। रेडियो बटन के लिए नाउ दिस मेल एंड फीमेल, दिस आर द ग्रुप ऑफ दिस सेम, ये मेल एंड फीमेल ये जेंडर का ही पार्ट है। ओके, दोनों भी इसी के पार्ट है, इसलिए ये दोनों रेडियो बटन्स का नाम सेम रहना चाहिए, नाम सेम रहना चाहिए। ये दोनों रेडियो बटन्स का नाम सेम रहना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि दिस आर द रेडियो बटन्स ऑफ द सेम ग्रुप। क्यों सेम ग्रुप के रेडियो बटन्स को सेम नाम क्यों चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम एक ही सेलेक्ट करना है। एक ही सिलेक्शन के लिए आपको हमेशा नाम सेम देना पड़ेगा। अगर आपने नाम डिफरेंट दिया तो क्या हो जाएगा कि आप मेल भी सेलेक्ट कर सकते हो और फीमेल भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसलिए हमेशा रेडियो बटन के लिए नाम सेम रहना चाहिए। ओके, एक ही ग्रुप के रहेंगे तो। नाउ हियर आई एम गिविंग नेम R1। ओके, सो डन विद दिस आई विल राइट ग्रेटर देन साइन। अब मुझे ये सर्कल के लिए मैंने कोडिंग लिख लिया। मेल मुझे हैज इट इज लिखना है, देखो ग्रेटर देन साइन लिखा मैंने, उसके बाहर में मेल लिख रही हूँ।
एंटर। नाउ यहाँ पे स्पेस दिया है सिर्फ, तो मुझे ब्रेक देने का जरूरत नहीं, एक ही लाइन में आना चाहिए फीमेल भी, तो आई विल जस्ट राइट इनपुट टाइप। नेक्स्ट लाइन में लिखी हूँ लेकिन मैंने ब्रेक नहीं दिया, इसलिए वो उसी लाइन में आने वाला है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा रेडियो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नेम। नाउ फीमेल के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो सेम ही ग्रुप का है, इसलिए मुझे नाम सेम लिखना है। ओके, रिमेंबर यो, मैंने R1 यहाँ पे लिखा और यहाँ R1 यहाँ पे लिखा। ओके, सो वी आर राइटिंग नेम फॉर सेम वन, सेम थिंग। ओके, सो now what I will do, I will write greater than sign and I will write female. Okay, now done. Now we can give two breaks. Now we are going to write hobbies. Okay, we will write what? Hobbies. So hobbies as it is आपको लिखना है. Just a second. Hobbies, then colon. Okay, now in the next line we want to write this. Okay, so I'll just what I will do, I will just give break. Okay, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है, सिंगल ब्रेक दे रही हूँ क्योंकि इसके नीचे ही आ रहा है। ऐसा गैप आया क्या, गैप रहेगा ज़्यादा तो दो ब्रेक्स दे रहे हैं हम लोग, इसके नीचे डायरेक्टली आना चाहिए इसलिए मैंने सिंगल ब्रेक दिया, फिर डायरेक्टली सिर्फ एक लाइन छोड़ के ही वो हॉबीज लिखेगा। नाउ यू कैन राइट, ब्रेक देने के बाद भी मैं यहाँ पे इनपुट टाइप लिख सकती हूँ, वो नीचे ही देगा। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा चेक बॉक्स, चेक ब्रेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे भी आपको देखो मैंने ये चेक बॉक्स, पहला वाला चेक बॉक्स है उसके लिए लिखा टाइप चेक बॉक्स नेम। अब यू हैव टू गिव नेम। अभी ये जो डिफरेंट चेक बॉक्स है सबके लिए हम लोग अलग अलग नाम देंगे। यहाँ पे चेक बॉक्स में नेम डिफरेंट होना चाहिए लेकिन रेडियो में सेम नाम होना चाहिए। ओके, द रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट, because multiple click is allowed in the checkbox but a single click for the radio button, that's why। तो यहाँ पे C1 checkbox का नाम दे रहे फर्स्ट वाले इसका, फिर ग्रेटर देन साइन क्लोज। नाउ आई राइट म्यूजिक। ये checkbox के लिए मैंने कोडिंग लिखा, अभी म्यूजिक लिखना है, सो आई राइट म्यूजिक। ओके, नाउ आई विल जस्ट गिव द अनदर ब्रेक सो दैट नेक्स्ट ब्रेक में आएगा वो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इनपुट टाइप। ओके, अभी नेक्स्ट इसमें भी मुझे पहले चेक बॉक्स ही बनाना है, सो आई राइट इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा चेक बॉक्स नेम। नेम विल बी व्हाट नाउ अगेन C2। नाम हम लोग अपने मन से कुछ भी दे सकते, सो आई राइट C2 नाउ कुकिंग। ओके, सो आई राइट कुकिंग एंड व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, हो गया कुकिंग लिख के, अभी ब्रेक। Similarly, for this third checkbox के लिए what I will do is just copy this and I will paste it. Just you have to change the name. आपको सिर्फ नाम change करना है. So instead of wasting time, I will just do it. Control V, Control V. I'll just change the name over here. C3. Okay. और cooking के बदले क्या है थर्ड हॉबी? राइट एनीथिंग यू वांट, जस्ट आपको वर्क कैसा करता है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप कोई भी हॉबी लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन रीडिंग बुक्स। सो लास्टली रीडिंग बुक्स। ओके, नाउ डन। नाउ यू कैन गिव टू ब्रेक्स क्योंकि लास्ट में थोड़ा ज़्यादा गैप आना चाहिए इसलिए। नाउ सी फॉर दिस ओके एंड कैंसल। ओके मीन्स व्हाट, पूरा डेटा एंटर किया तो आपने ओके किया तो क्या हो जाएगा, आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। ओके, कैंसिल मीन्स व्हाट, जो भी डेटा आपने एंटर किया आपको लग रहा है कि बराबर नहीं है तो आपको कैंसिल करना है जो लिखा हुआ है, तो आपको रीसेट करना पड़ता है। तो ये बटन का नाम हम लोग कुछ भी देख सकते हैं लेकिन ओके का मतलब क्या होता है कि डेटा सबमिट करना है। तो मीन्स इनपुट टाइप क्या आएगा, सबमिट आएगा। ओके, इनपुट टाइप क्या आएगा, सबमिट आएगा। और कैंसिल मीन्स वो जो भी डेटा लिखा है वो मुझे सबमिट नहीं करना है, तो मुझे कैंसिल के लिए क्या करना पड़ेगा, रीसेट, यानी जो भी डेटा लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ अब ये बटन के लिए हम लोग दिस इज अ सबमिट बटन, दिस इज कैंसिल इज अ रीसेट बटन। ओके, तो इसके लिए कोडिंग कैसे लिखेंगे, देखो इनपुट टाइप, अभी ये इसके बाहर नहीं है, इसके अंदर ही है। जैसे ये सब कैसे थे, बाहर थे, तो मुझे ये सब लिखने,
इनपुट टाइप के अंदर लिखना नहीं पड़ता था, ये बाहर लिखना पड़ता था, ग्रेटर देन साइन के बाहर, ओके ये सब। लेकिन ओके तो इसके अंदर है, तो इसके लिए कैसा कोडिंग लिखना है, इनपुट इज इक्वल टू, ये सबमिट का पार्ट है, सो आई लेट सबमिट name, you have to give name is equal to s1 I'm giving, okay। यहाँ पे आपको वैल्यू देना है, क्या देना है, वैल्यू। इसमें जो वैल्यू आप लिखोगे ना वो इस बटन के अंदर आता है, ओके। यहाँ पे ओके आया है तो मुझे वैल्यू में क्या लिखना पड़ेगा, ओके, ओके। तो ये आउटपुट में ओके दिखेगा, ओके। अगर यहाँ पे सबमिट रहता तो आप वैल्यू में सबमिट लिखते। यहाँ टाइप तो आपको लिखना ही है कंपलसरी, लेकिन वैल्यू भी कंपलसरी है, जो आपको इस बटन में दिखना चाहिए नाम। ये ओके जो दिख रहा है ये बटन के ऊपर नाम आया है, तो ये बटन का जो नाम होता है आपको वो वैल्यू में लिखना पड़ता है, ओके। देन आपको सेम लाइन में, तो मुझे ब्रेक नहीं देना है, मुझे इनपुट नाउ आप बोलो कि क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रीसेट, ओके। मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रीसेट। फिर मुझे यहाँ पे देना है नेम, नेम इज इक्वल टू s2, देन वैल्यू, नाम कुछ भी दे सकते हो, इसलिए मैंने कुछ भी लिखा है, वैल्यू। यहाँ पे रीसेट नहीं है, यहाँ पे कैंसिल लिखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैंसिल, ओके। अपना पूरा कोडिंग हो गया फॉर्म का, तो हम लोग फॉर्म क्लोज कर सकते हैं, सॉरी, क्लोज, बॉडी क्लोज, सेव दिस फॉर्म। फॉर्म को आपको सेव करना है। आपने जो फॉर्म पहले प्रोजेक्ट HTML के कोडिंग्स किए रहेंगे, आपने जो फोल्डर बनाया रहेगा फॉर्म प्रैक्टिकल्स का सेव करने के लिए, वहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए, ओके। प्रैक्ट 13 सेव हो गया। नाउ वी विल सी द आउटपुट हाउ इट लुक्स। The folder I will see, yeah, HTML practicals. Now 13th one, so I'll open this is a Microsoft Edge, but I want to open it with Fox Pro, तो मैं Fox Pro से इसको ओपन करती हूँ, राइट क्लिक, ओपन विथ फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, okay। So taking too much time as usual, always takes a time to open the Mozilla Firefox. But it is showing you how it looks. Here it is showing you the view of this. This, refresh it. Okay, now see here underline. So this is the H1. Enter your name. See in the question you can see that similar type of question was there, right? This was your question output. Is मुझे इस तरह से question, sorry, इस तरह से मुझे आउटपुट बनाना, कोडिंग लिखना था। सो सी यो सेम वैसे ही आया कोडिंग आउटपुट, ओके। अपना आउटपुट वैसे ही आ रहा दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, ओके। नाउ सी, नाउ हियर यू कैन एंटर द नेम। आप यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हो, एनीथिंग। आई विल जस्ट राइट एनी नेम, रितेश, ओके। और एक Rita. Okay, then enter your birth date, any date, whatever birth date you want to write, you can write any birth date. Okay, I don't know what is your birth date. I'm just writing like this. Okay, so now Rita. Now suppose she's a female. Okay, then her hobbies will be music, dancing, reading books, anything. You can multi check. Now देखो यहाँ पे मैं अगर मेल चेक टिक कर रही हूँ तो फीमेल अनटिक हो रहा है। Why this is happening? Because this is a radio button, and for radio button you should give the same name so that you can select only one option at a time. And for multiple checkbox, and for checkbox you can select multiple options. आप multiple options select कर सकते हो, ओके। सो आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डेटा एक बार का हो गया तो इफ़ यू क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन देन योर डेटा गेट्स सबमिटेड, ओके। नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल बटन सो दैट डेटा इज इरेज्ड, ओके, यानी रीसेट हो जाएगा। सो सी कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा चला गया, ओके। नाउ अगेन इफ यू वांट यू कैन अगेन एंटर द डेटा। So suppose now I'm writing Ritesh. Okay, now I'm writing Ritesh.
then I'm just writing, I'm giving the birth date, any birth date, whatever you want. um okay, then male, I will select male. Okay, then his hobbies might be dancing, reading books, whatever want you want. Okay, now ये हो गया data. So I'm submitting the data. Okay, I'm clicking on the data. Okay, data पे click किया मैंने. Okay हो गया. Now see, the one thing which I tell you is method. मैंने आपको method attribute बताया था form के लिए. तीन एट्रीब्यूट्स थे फॉर्म के. वन वॉज एक्शन, वन मीन्स मैथड, एंड वन इज नेम. ओके, नेम मीन्स गिविंग नेम टू द फॉर्म. नाउ मैथड मैं नहीं लिखूंगी तो भी बाय डिफॉल्ट मैथड क्या रहता है, गेट रहता है. मैथड इज ऑफ टू टाइप्स, गेट एंड what you can say post. By default it is get. Get means what, whenever you submit the data to the server, then the data whatever you have entered that will be shown in the address bar. सो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, मैंने डेटा भी जो लिखा था ना रितेश का, यहाँ पे दिख रहा है आपको एड्रेस. दिस इज एड्रेस बार. सो आफ्टर सबमिटिंग द डेटा यहाँ पे रितेश करके दिखा रहा है. फिर यहाँ पे आपको 1992 02 02 03 1992. फिर R1 यानी रेडियो बटन, जो आर ये जो है ना R1 एंड ऑल दैट, ये क्या था मेरा T1, क्या था मेरा नाम था टेक्स्ट बॉक्स का. T1 टेक्स्ट बॉक्स मीन्स दिस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने नाम दिया था T1, तो उसका वैल्यू क्या दिखाया रितेश. T2 का वैल्यू क्या दिखाया, T2 यानी ये वाला बर्थ डेट का. T2 का वैल्यू क्या दिखाया 02 03 1992. एंड R1 मीन्स मेल एंड R2 इज फीमेल. बट R1 सॉरी R1 दोनों, एक मेल था एक फीमेल था, बराबर है, तो दोनों का नाम सेम था R1 के लिए. तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू ऑन एंड C3 जो क्लिक किया था, C3 एंड C4, C1 C2 C3 C4. सो C3 एंड C4 सेलेक्ट किया था, दैट इज ऑन मीन्स व्हाट, ये दोनों सेलेक्ट किया है. और यहाँ पे ये मेल फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया है. ओके, तो वो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा हम लोग एंटर कर रहे हैं, जब बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट होता है, तो जब आप डेटा सबमिट करते हो सर्वर को, तो वो एड्रेस बार में आपका डेटा दिखाता है. अगर आपको ये डेटा हाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड में. नाउ सी आई विल शो यू योर इटसेल्फ. मेथड में हम लोग फॉर्म का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही लेता है. तो आप इसको अभी पोस्ट कर दो. ओके, पोस्ट लिखेंगे. ओके, नाउ सेव दिस फॉर्म. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रिफ्रेश इट. ओके, नाउ वी विल राइट न्यू डेटा. अभी हम लोग न्यू डेटा लिख के देखते हैं. ओके, आई विल राइट शालिनी, देन आई विल राइट द डेट ऑफ दैट. Look here carefully. I'm submitting the data. So see, when I'm submitting the data, it is not showing me the data of Shalini. It is showing me the data of Ritesh only. ये सिर्फ मुझे रितेश का पहले का ही दिखा रहा है क्योंकि पहले का डेटा में हम लोग ने मेथड ऑफ नहीं किया था. Okay, what we will do, we'll just close this. We will again go in this. Actually, it takes time. That's why I'm not using this. Okay, I'll just right click this and I will open it with Mozilla Firefox. अभी आपको डेटा नहीं दिखना चाहिए, आपके एड्रेस बार में आपको डेटा नहीं दिखना चाहिए. तो अभी मेथड मैंने पोस्ट किया है, तो लेट अस सी वेदर इट इज शोइंग. अभी तो नहीं दिखाया था, फिर भी वो पहले का डेटा दिखा रहा था, तो अभी मुझे कुछ भी वो दिखना नहीं चाहिए. सो फॉर दैट वी विल सी. ओके, नाउ इट इज इंस्टॉलिंग अपडेट. अगेन इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम. ओके, डन डन. Now let us write the data. Just write the data. The birth date, any date, whatever I want. Okay, then I'm selecting the gender, then I'm just selecting the two hobbies, and I'm doing okay. Now see, the data has been submitted and in the address bar you are not seeing any data of Shalini. जो भी डेटा हम लोग ने फिल किया था वो डेटा आपको दिख रहा है कि एड्रेस बार में नहीं दिख रहा है. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ व्हाट, बिकॉज मैंने फॉर्म का मेथड पोस्ट कर दिया है. मेथड पोस्ट करने से क्या हो गया, जो भी डेटा था वो सिक्योर हो गया है. अब किसी को वो डेटा एड्रेस बार में नहीं दिखेगा.
ओके, दैट इज अ मेथड। ओके, सो फॉर्म का और एक एट्रीब्यूट नेम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट्स तो वो यहाँ पे पढ़ा देते हो इसी कोडिंग में। नेम, यू कैन गिव एनी नेम टू द फॉर्म, ये नाम आपको दिखने वाला नहीं है। ओके, सो फॉर्म का नाम अभी यहाँ पे तो नहीं दिखेगा। ओके, रिफ्रेश इट, आपको आउटपुट में यहाँ पे नहीं दिखता है। राइट एनीथिंग, यू आल्सो राइट एनीथिंग। ओके, जस्ट राइट एनीथिंग। Okay, so you cannot see the form name. Okay, then the another thing which I want to tell you is action. The next attribute or the last attribute is action. Action means after submitting a form, आपको कौन सा, अभी देखो यहाँ पे मैं फॉर्म सबमिट कर रही हूँ तो वो कहाँ पे भी नहीं जा रहा है, सबमिट करने के बाद पूरा डेटा सबमिट हो रहा है और ये फॉर्म वैसे के वैसे ही रह रहा है। तो अगर आपको लगता है कि सबमिट करने के बाद ये नए पेज पे जाना चाहिए, तो आपको एक्शन में कहाँ पे जाना चाहिए उसका नाम लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये कहाँ पे जाना चाहिए, आप यानी साइट का नाम लिख सकते हो, या फिर आप किसी और फाइल, यहाँ पे कोई भी HTML का फाइल रहेगा वो लिखो तो भी चलेगा। ओके, फिर वो एक्शन करने के बाद मीन्स पूरा फॉर्म होने के बाद वहाँ पे चला जाएगा। ओके, लेट अस सी, आई एम राइटिंग समथिंग ओवर हियर, आई एम जस्ट राइटिंग, ओके, आई एम सबमिटिंग द डेटा। ओके, डेटा सबमिट हो गया। नाउ सी व्हाई इट इज गिविंग मी द एरर बिकॉज दिस नेट इशू इज दैट, दैट्स वाई ये फाइल ओपन नहीं हुआ, यानी गूगल का डेटा ओपन नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस आई जस्ट राइट द फाइल नेम। जो भी प्रैक्टिकल्स हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें से मैं प्रैक्टिकल 1.html लिख दी। सो मीन्स इसके बाद ये ओपन होना चाहिए, ऐसा मैंने लिखा। सेव करो एंड नॉट दिस वन, विल गो बैक, विल राइट F5. Okay, we'll just refresh it. Okay, see, आफ्टर क्लिक सबमिटिंग द डेटा, मेरा प्रैक्टिकल 1 का डेटा मीन्स जो भी प्रैक्टिकल 1 में मैंने लिखा था वो आउटपुट मीन्स क्लिक करने के बाद में वो फाइल ओपन हो गया, क्योंकि मैंने एक्शन में क्या लिखा है, देखो एक्शन में लिखा है pract1.html, मीन्स फॉर्म सबमिट होने के बाद में ये वाला फाइल ओपन करो। ओके, तो इसलिए उसने क्या किया, मैंने डेटा को ओके करने के बाद उसने ये फाइल ओपन कर दिया, मीन्स आउटपुट दिखाएगा आपको। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ एक्शन। तो फॉर्म के तीन एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, तो तीनों भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मैंने पढ़ा दिए। ओके, मेथड, नेम एंड एक्शन। तो इनपुट टाइप्स हम लोगों ने इनपुट के टाइप के कंट्रोल्स, यहाँ पे कितने कंट्रोल्स देखा हम लोगों ने, टेक्स्ट बॉक्स देखा, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट एंड रीसेट। ओके, बटन इनपुट टाइप बटन करके जो कंट्रोल था वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस इन 11th स्टैंडर्ड, सो वो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट वन। only the remaining is what password, so that I will teach you in the today only in the next practical. Now see here, so हम लोग ने टेक्स्ट बॉक्स किया 1 2 3 4 5, ये जो कंट्रोल्स है हम लोग ने 5 कंट्रोल्स यहाँ पे इस कोडिंग में देख लिए। ओके, नाउ लेट अस डू द अनदर कोडिंग, आई विल शो यू अनदर what, let us see the next question. So maximize. Now come to this question. Today we are going to solve 3 questions, and that is, I think that will be much more enough for you. You try to solve small and try to create small pages. See, this is the small coding we will do over here. यहाँ पे हम लोग अभी ये सेकेंड, ओके, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। ओके, दिस सेकेंड फॉर्म वी वांट टू राइट कोडिंग फॉर दिस इज जस्ट अ सिंपल लॉगिन पेज। आपको लॉगिन पेज ऐसा हेडिंग लिखना है, उसमें आपको यूज़र नेम लिखना है। तो यूज़र नेम के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स। कौन सा टाइप रहेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। पासवर्ड देना है आपको, तो इनपुट टाइप क्या आना चाहिए, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आना चाहिए आपको, पासवर्ड है तो डॉट्स में रहेगा। ओके, तो इनपुट टाइप पासवर्ड। रिमेंबर मी, इसके सामने एक छोटा सा चेक बॉक्स है। ओके, फॉर दिस स्मॉल बॉक्स यू आर गोइंग टू राइट इनपुट टाइप चेक बॉक्स। देन रिमेंबर इज अ टेक्स्ट एंड दिस इज साइन इन। साइन इन मीन्स इसके ऊपर क्लिक करके डेटा सबमिट होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, ये इनपुट टाइप क्या रहेगा, सबमिट बटन। तो लेट अस डू कोडिंग फॉर दिस। ओके, not this one. So let us do coding for this. We will go in notepad. I have closed the notepad. We'll do the coding in the notepad.
दे देते हैं. ओके, BG कलर इज इक्वल टू पिंक. फॉर्म H1 ALIGN align is equal to inverted comma center. See, it is not like that कि हम लोग बाकी के जो टैग्स पढ़े वो इसमें यूज़ नहीं कर सकते. वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज़ विथ फॉर्म्स ऑल्सो. जो भी टैग्स हम लोग ने पढ़े हैं वो इसके साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो आपको जो भी टैग्स यूज़ करना है आप यूज़ करो. ओके, लॉगिन पेज, दिस इज द हेडिंग. देन आई विल क्लोज यू, आई विल क्लोज H1. Done with this, now come to the next. आपको यूज़र नेम हैज इट इज़ लिखना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर यूज़र, user name, then I'll write colon. Now I'm going to write coding for this box. ये box के लिए coding लिखेंगे. Input type is equal to text. Okay, then the name for this text box is equal to whatever name you want to give. Give two breaks so that it looks good in the output. Okay, then I will give password. Okay, password colon input type. now अभी टाइप क्या लिखना है, मुझे टेक्स्ट लिखना है क्या नहीं. पासवर्ड आपको नहीं दिखना चाहिए, पासवर्ड डॉट्स में या फिर एस्ट्रिक मार्क में आना चाहिए. तो आई विल गिव योर पासवर्ड. Name for this password also I am giving P1. Again I will give two breaks. Enter. Then फॉर द छोटा सा डब्बा है ना जो चेक बॉक्स है उसके लिए पहले कोडिंग लिखेंगे. देखो जहाँ पे पहले आता है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नहीं, पहले यहाँ पे बॉक्स है तो पहले बॉक्स के लिए कोडिंग, फिर रिमेंबर में लिखेंगे. ओके, सो इनपुट इक्वल टू रिमेंबर मी है तो आपको रिमेंबर मी लिखना है. रिमेंबर मी. ब्रेक, सॉरी. यहाँ पे सिर्फ इनपुट टाइप क्या आएगा, डेटा सबमिट होना चाहिए. तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सबमिट. ओके, सबमिट. देन आई विल गिव नेम फॉर दिस बटन. सो आई जस्ट गिव S1. देन आई विल गिव वैल्यू. व्हाट वैल्यू में क्या आएगा, जो आउटपुट में आया है साइन इन. तो आपको वैल्यू में क्या लिखना है, साइन. And with this, now I have finished the coding. So I will close the form and I will close the body. I will close the HTML. Okay. So save this form again. Save this form. .html. Okay. Then after saving this form, see the output. Okay, let's go in the HTML practicals 14th. राइट क्लिक. सी यहाँ पे आउटपुट आ भी गया, आपको ओपन करने का ज़रूरत भी नहीं है. बट यहाँ पे मैं डेटा एंटर नहीं कर सकती है, मीन्स आई कैन नॉट एंटर एनी डेटा. सो आई विल गो इन द लॉगिन पेज. हाउ इट लुक्स बूट्स ने यहाँ पे दिखा दिया है. ओके, लेट इट कम फर्स्ट. See, login page, username, password. Now I'll just write any username. Okay, I'll write here any username. So I will this name by default it is coming because इसके पहले हमने text box use किया था, that's why. ST. Any address you will write, then password. Suppose
ये जस्ट क्रिएटिंग। सो देखो पासवर्ड पूरा डॉट्स में आ गया। रिमेंबर मी इज ऑप्शनल। रिमेंबर मी किस लिए होता है, आपने अगर देखा रहेगा, आप जब ये करते हो तो आपका पासवर्ड सेव रहना चाहिए, उसके लिए रहता है रिमेंबर मी करके। आपको चाहिए तो आप टिक करो या फिर अनटिक करो, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो ये जस्ट हाउ टू क्रिएट दैट पेज। ये जो वेबसाइट में ये जो पेजेस होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके ये लॉगिन पेज कैसे बनाया जाता है या फिर कोई भी पेजेस कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। डेटा सबमिट किया, फिर ये पूछ रहा है सेव करना है या नहीं करना है, तो आई एम नॉट सेविंग, ये तो ऐसे ही बनाया इसलिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेथड था गेट, मैंने मेथड नहीं दिया, तो देखो सारा डेटा जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, बराबर है, सारा डिस्प्ले कर रहा है। सो ये पासवर्ड भी डेटा पूरा ये दिखा रहा है कि मैंने क्या पासवर्ड टाइप किया था, मैंने ऐसे ही कुछ भी प्रेस किया तो उसने दिखा दिया यहाँ पे। सो it is bad practice to write get method instead of method, instead of get method you can use post method. Okay, so ये था simple. Now let us see the other attributes also. यहाँ पे आज दूसरे attributes input type के लिए मैंने input के लिए और attributes पढ़ाए थे जो सिर्फ टेक्स्ट और पासवर्ड के लिए यूज़ होते हैं। कौन से हैं? साइज एंड मैक्स लेंथ। तो हम लोग साइज देखे थे, साइज यानी टेक्स्ट बॉक्स का साइज। ओके सो यहाँ पे मैं साइज लिख रही हूँ 20, तो यहाँ पे साइज 20 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो देखेंगे। एंड पासवर्ड के लिए मैक्स लेंथ दे रहे हैं। मैक्स लेंथ मीन्स कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो, उसका हम लोग ये कर रहे हैं LENGTH। लिमिटेशंस दे रहे हो ओके कि कैरेक्टर्स शुड बी ओनली ऑफ 8, मीन्स मैक्सिमम लेंथ शुड बी 8 नॉट मोर देन 8। ओके तो यहाँ पे ये लिखा, सेव किया। ओके नाउ लेट अस गो टू द आउटपुट, रिफ्रेश इट। सॉरी ब्रेक कट हो गया। your username, text box size. साइज मैंने 30 दिया तो साइज बढ़ गया। देखो इसका साइज मैंने चेंज नहीं किया था इस बॉक्स का, तो ये बाय डिफॉल्ट जितना रहता है उतना ही आया, लेकिन यहाँ पे मैंने 30 साइज दिया तो बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का साइज इंक्रीज हो गया। ओके इधर कैरेक्टर्स कितने भी लिख सकते हो उसका साइज, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस नहीं दिए है इन्होंने। सिंगल एंड टेक्स्ट बॉक्स में जो लिमिटेशन है वही, लेकिन यहाँ पे मैंने मैक्स लेंथ 8 लिखा है। वॉट आई विल राइट, आई विल जस्ट राइट MODEL मॉडल COL। नहीं हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर्स इधर ही हो गया है, इसलिए वो आगे का कैरेक्टर्स नहीं ले रहे हैं। सो जस्ट राइट मॉडल, तो वो मॉडल ले सकता है क्योंकि मॉडल सिर्फ 5 लेटर्स का है, लेकिन कॉलेज लिखने के लिए जाएंगे तो COLL उसके बाद नहीं ले रहे हैं क्योंकि 8 कैरेक्टर्स जहाँ पे फिनिश हो रहे हैं वहाँ तक ही वो लिमिटेशंस लगा रहा है। ओके तो यहाँ पे वो नहीं समझेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉट वी विल डू, विल जस्ट मेक सम चेंजेस। ये मैक्स लेंथ आई विल राइट दिस, I will write that max length over here so that ये दिखेगा ना तो आपको समझेगा बराबर। Okay, I'll just cut this. Now see 8 characters. I'm writing here model college. Okay, model college. तो नहीं हो रहा है क्योंकि Moodle हो जाएगा। ओके सॉरी, सो सी मॉडल कॉलेज का CO तक लेगा क्योंकि स्पेस भी पकड़ेगा। 5 स्पेस एक 6 7 एंड 8 लेटर्स का ही मैक्सिमम कैरेक्टर्स एंटर है। सो नाउ इवन इफ यू ट्राइंग टू एंटर देन इट इज नॉट गोइंग टू एंटर द अदर कैरेक्टर्स। सो आई होप दिस एट्रीब्यूट इज क्लियर टू यू। ये मैक्स लेंथ और साइज ये दोनों एट्रीब्यूट सिर्फ टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड के लिए ही होते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। अगर अभी वो और एक एट्रीब्यूट है चेक्ड, जो हम लोग चेक बॉक्स और रेडियो बटन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो रिमेंबर मी ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेलेक्ट चाहिए, ओके बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सेलेक्टेड चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेकड कर देंगे। ओके
what we will write? We will write here checked. यहाँ पे checked कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट आपका रिमेंबर मी चेक्ड होके आ जाएगा, मीन्स सेलेक्ट होके आ जाएगा. सेव करो और आई विल रिफ्रेश दिस. देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आ गया. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस. चेक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आएगा, फिर आप इसको अनटिक भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेलेक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे? बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेलेक्ट चाहिए, ओके, सो सी एम रिफ्रेशिंग इट. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेलेक्टेड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे चेक लिखना पड़ेगा, चेक बॉक्स में या फिर रेडियो बटन में. ओके, so this was one. Now we will see the last question. Okay, yeah, now coming to the last question of today's lecture. This is the practical. See your student details. This is a heading, as we all know. Then student name, and this is what? Text box. Your address and this. Now what is this? This is what? This also looks similar to this one, but here you can see the scroll bar is present, and it is a big text box than this small text box. So it is a multi-line text box, you can say. That means for this you have to write text area. Okay, this is a multi-line text, so for this you have to write text area. Then this, you know, this is a radio button. Now coming to this place, here also you can see that scroll bar is present and Kalyan is written over here. That means when you click on the scroll bar, you are going to get the list of the places. So it is what? It is a list box. It is a drop down list. So for drop down list, what tag you are going to use? You are going to use select tag, right? And this you know. So let us do coding for this form. Okay, so just minimize this coding so that you'll be able to see the coding, and this is the notepad. Okay, so as we always do, start with HTML, then with body, then what we are going to write? We are going to write form, then we will write H1, we will write align is equal to inverted comma center, then we will write U to underline the heading. And what is the heading? Student details. So write down student, student details. Okay, then after the sorry, so student details, then close underline, then close H1. Done with this. Now coming to the form, this student's name. So we'll write what? Student's name. Student's name and colon. Okay, now coding for this box. This box coding क्या है? Input type is equal to text. Okay, then give the name for this. Name is what? Tx. I'm giving. Okay, inverted comma and greater than sign. Now give two breaks. Then what is the next one? Address. So I will write address as it is. Then I will write coding for this box. Okay, क्या आने वाला है? Text area. Okay, so simply we are writing text area and we are closing the text area because text area is a containers tag, so we have to close it. Okay, now done with this, we will write break. Sorry, break. टेक्स्ट एरिया सिंपल आपको लिखना है. अभी मैंने एट्रीब्यूट्स. ओके, नेम इज कंपलसरी, सो आई विल राइट नेम ऑल्सो फॉर दिस. ओके, आई विल राइट TA. Okay, I will not write anything, any other attributes of text area, that we will see after seeing the output. Okay, so simply we have to write like this. Nothing, no address we are going to write over here. Address we are going to write in the output itself. Okay, now next one is standard, so we'll write standard as it is, STD. Then we are going to write coding for this radio button. Okay, so what we are going to write? Input type is equal to inverted comma radio. Then give the name for the radio button. Okay, so this is standard, so I will write ST inverted comma. Okay, and I will write the first, what it is, standard is 11, so I will write 11. Okay, then moving further, we will write the second code, second input type, that is the second radio button. Okay, input type is equal to radio. Again, name should be same because it is of one group only.
That's why I'll write EST only. Okay, then greater than sign, and you are going to write standard as a 12. Then with this, give two breaks. Give two breaks. Then come down. We'll write place as it is. This place we have to write place colon. Now we'll write coding for this drop down list. So what we will write, select. Now select and name. Only this attribute we will use here, name. Afterwards we will see the attributes also. Now option. First option. Option is, now suppose I am writing Kalyan. Okay. First option is displayed as a Kalyan, and rest we are not able to see, so we are going to write ourselves. Now just this is one option. See, it works same as that of the list items. Like in ordered list and unordered list, we have studied how to write the list item. In the similar way, we have to write for the ड्रॉप डाउन लिस्ट इन फॉर्म्स ऑल्सो. ऑप्शन लिखना है इंस्टेड ऑफ एल आई. ओके, तो ये जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइटम्स होते हैं या लिस्ट होती है, उसको लिखने के लिए हम लोग ऑप्शन का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ आई हैव कॉपीड दिस एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट डाउन. Name instead of Kalyan, I will write, now what I will write, I'll write Thane, I'll write Ambarnath, I'll write Diva, Dombivli, whatever, and here I will write Badlapur. Okay, whatever place you want, you can write. Okay, then the list has been finished. Now we will close the select. Submitting the form, you are going to use submit. Type will be submit. Name is any name you can use, so I will just give ST. I have already given submit name ST, so I will give SM. Okay, then value. Now value means what? Here we want to give the value of this. So your output में आपको submit दिख रहा है, so I'm going to write submit as a value. Okay, then what we will give, input type, and in input type, now it is a reset. Okay, so reset, and the name for this I'm giving is R. Okay, comma close. Now what will be the value? Yes, what you can see in the output, reset. So I'm going to write that only, reset. Okay, now done with this, we will close the form, we will close the body, we will close the HTML. Okay, so this is done. Now let us save the file as we always do. Save the file. I will give the name as pract.ht. Okay, now let us open the file. And just open this practical file in Firefox. Now let us see the output. So see, this is the output which was there in your question. See, can we see it is similar? Okay, student detail is 0 because we have aligned in the center, so it is going to come in the center. Okay, now see, this is there. Okay, now what? See, now here I am going to write any data, any name. Here I am going to write the address. Now this is a multiple line text, so you can write the address as you wish. Then I will select the standard. Now from this drop down list, I can select any place, whichever I want. Okay, suppose I am selecting Badlapur. Now see, in this case you can select only one place. Okay, यहाँ पे मैंने attribute कुछ भी दिया नहीं है select का, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही place select कर सकती हूँ. Okay, and I cannot select more than one place. For that purpose, you are going to use multiple option, but that we will see afterwards. Now you can submit the data. So this data has been submitted. Now what we will do, we will just change some coding. Text area, we will use the attribute of rows and columns. यहाँ पे देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया तो ये ऐसा आ रहा है. Now we will just write rows. Rows is equal to inverted comma, means how many rows should be there. I am writing rows as 3, and I will write
save it and see the output how it looks. See, the text box has been changed. Okay, so this is how you can do the rows and columns. Now suppose I want to give placeholder भी attribute पढ़ाया उसमें, so that also we will see placeholder is equal to, it is nothing but hint for the users how to what to write there. Okay, ये सिर्फ hint होता है यूज़र के लिए कि वहाँ पे क्या लिखना है. Okay, so I'll just write your address. Okay, and I'll just write this like this placeholder. So this attribute I'm using control s, I'm saving it and now just refresh it. Now see, this is giving you the hint, this is giving the user the hint that here you have to write the address, so that the user will come to know that हाँ yes यहाँ पे मुझे एड्रेस लिखना है. ओके, that is the work of the placeholder, कि वो बताता है यूज़र को कि आपको क्या करना है. Now the next attribute is required. Required को आपको सिर्फ simply required लिखना है. So I will show you in the big screen. Text area, name, rows, calls, placeholder. Now required में आपको इक्वल टू डाल के कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ रिक्वायर्ड लिखना है. रिक्वायर्ड मीन्स इट इज़ अ कंपलसरी फील्ड, विदाउट फिलिंग दैट फील्ड यू कैन नॉट गो फर्दर. जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में आपको रेड एस्ट्रिक मार्क आता है क्वेश्चन के बाजू में, तो वो कंपलसरी होता है. आपका आंसर आए या नहीं है फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो आंसर को टिक करना है, अदरवाइज आप फर्दर नहीं जा सकते. ओके, बिकॉज इट इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड. तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एड्रेस को अगर रिक्वायर्ड किया तो इट विल बी कंपलसरी दैट यू हैव टू राइट द एड्रेस, अदरवाइज इट वोंट गेट सबमिटेड. सो अभी इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं रिफ्रेश करके. ओके, रिफ्रेश. नाउ राइटिंग एड्रेस. ओके, सी हियर इट इज़ गिविंग यू द मैसेज. अभी हम लोग एड्रेस नहीं लिखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबमिट होता है क्या फॉर्म. ओके, आई एम सेलेक्टिंग थाने, आई एम सबमिटिंग द फॉर्म. सी द फॉर्म इज नॉट गेटिंग सबमिटेड, इट इज सेइंग दैट फिल आउट दिस फील्ड. आपको ये फील्ड पहले आपने नहीं किया था तो वो डायरेक्टली विदाउट एड्रेस ले सकता था, लेकिन अभी वो नहीं लेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि ये कंपलसरी फील्ड है, तो आप ये जब तक नहीं फिल करोगे तब तक आप नहीं जा सकते. देखो अभी सबमिट हो गया फॉर्म, क्योंकि डेटा चला गया तो फॉर्म सबमिट हो गया. सो रिक्वायर्ड समझा क्या होता है? रिक्वायर्ड इज़ फॉर कंपलसरी. वन मोर थिंग कीप इन माइंड कि यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए. ये जो टेक्स्ट एरिया टैग मैंने लिखा है और ये जो क्लोजिंग टैग मैंने लिखा है, इन दोनों के बीच में अगर आपने स्पेस दिया, मैंने सेव किया. ओके, अभी आउटपुट देखो. अभी आउटपुट में आप प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड ये दोनों भी काम नहीं करेगा. अभी देखो मैंने रिक्वायर्ड लिखा है, मैंने प्लेस होल्डर लिखा है. प्लेस होल्डर आया क्या? नहीं आया. अभी यहाँ पे डेटा लिखेंगे, 12 लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो डेटा सबमिट हो गया सबमिट. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड भी वर्क नहीं किया और प्लेस होल्डर भी वर्क नहीं किया. रोज और कॉल्स वर्क किया लेकिन वो बाकी के दोनों वर्क नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं देना है आपको. ये स्पेस डिलीट करो, सेव करो और लेट अस सी द आउटपुट वंस अगेन. सी प्लेस होल्डर का आ गया वैल्यू. नाउ आई एम राइटिंग डेटा एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस. आई एम नॉट राइटिंग द एड्रेस, आई एम सेलेक्टिंग थाने, आई एम सबमिटिंग द डेटा. सी फिल आउट दिस फील्ड, यानी अभी ये रिक्वायर्ड वर्क कर रहा है. तो जब तक ये फील्ड नहीं फिल करोगे तब तक आप डेटा सबमिट नहीं कर सकते. ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Okay, so we have seen the attributes of text area, all attributes of text area. Yeah, one more is there, that is a max length. So that you know, I have already taught in the first practical कि max length क्या होता है, कि maximum number of characters required. तो अगर मैंने एड्रेस के लिए maximum number of characters लिखे तो उतना ही एड्रेस आप लिख सकते हो. ओके, तो that you know, so I am not going to again write that. Now we'll just move on select. now select के जो attributes थे वो कौन से थे? मल्टीपल. ये हम लोग ने देखा तो हम लोग सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते थे. अगर मुझे एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना है तो मुझे मल्टीपल लिखना पड़ेगा. यहाँ पे मल्टीपल लिखने के लिए आपको इक्वल टू 2, 3, 4 लिखने का ज़रूरत नहीं है. ओके, जैसे रिक्वायर्ड में हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा था, उसी तरह से मल्टीपल में भी आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ मल्टीपल लिखना है. सेव इट एंड सी द आउटपुट. सी जब आप मल्टीपल देते हो तो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आउटपुट दिखाता है. ओके, जो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है. सपोज अभी कल्याण भी मुझे सेलेक्ट करना है, आई वांट टू सेलेक्ट दीवा ऑल्सो. सो आपको कंट्रोल प्लेस करके कर्सर क्लिक करना है. ओके, कंट्रोल एंड कर्सर एक साथ. सी नाउ बोथ आर सेलेक्टेड. लाइकवाइज अगेन इफ यू वांट टू सेलेक्ट थाने ऑल्सो, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल एंड कर्सर. ओके, नाउ सी 3 fields are selected, Kalyan, Thane and Diva.
likewise. Okay, so this is the use of multiple options. So we can select, yes, if you want you can write the data also. See, data will be submitted or not. I have to write the address, so I'll write address. Is size. साइज मीन्स वॉट, अभी विदाउट साइज वो सिर्फ एट ए टाइम एक ही मल्टीपल रहेगा तो पूरा लिस्ट दिखाता है, ओके, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं. लेकिन अगर आपने मल्टीपल यूज़ नहीं किया तो आपको एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिखाता था, या फिर जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया सिर्फ वही दिखाता है एक ही. लेकिन अगर एट ए टाइम आपको एक साथ 2 देखने हैं या 3 देखने हैं, वॉट एवर, तो हाउ इट विल लुक. सी, साइज इज इक्वल टू 2 लिखा है. Now we'll just refresh it. So at a time you can see the 2 options. Likewise, click on the other, then other 2 options will be displayed. Again click, again 2 options will be displayed. Okay. So likewise we can see two options. Okay. But अभी मैं multiple select नहीं कर सकती हूँ. Okay. Even if you have, I want, I cannot select because अभी multiple निकाल दिया तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही option select कर सकते हैं. Okay. That is the use of size. Okay. Now all the attributes of select also done. Now we will come to option. ओके, ऑप्शन में मैंने 2 एट्रीब्यूट्स बताए थे, वैल्यू एंड सेलेक्टेड. जैसे हम लोग ने रेडियो बटन और चेकबॉक्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए, आउटपुट सेलेक्ट होकर आना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता था चेकड. और ऑप्शन के लिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन चाहिए तो हमको लिखना पड़ेगा सेलेक्टेड. अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अमरनाथ सेलेक्टेड चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा ऑप्शन के सामने वॉट, सेलेक्टेड. ओके, नाउ आई विल जस्ट सेव इट. लेकिन दिस वोंट वर्क, मैं रिफ़्रेश करेगी तो भी वो वर्क नहीं करेगा. आई हैव टू क्लोज दिस बिकॉज वो पहले का ही वैल्यू सेव करके रखता है, इसलिए उसको क्लोज करके फिर से आउटपुट देखेंगे. ओके, आई विल जस्ट अगेन आई विल क्लिक दिस आउटपुट, ओपन विथ फायरफॉक्स. सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अमरनाथ सेलेक्टेड होके आएगा. नाउ सी हो, अमरनाथ मैंने ऑप्शन के सामने सेलेक्टेड लिखा था, बाय डिफ़ॉल्ट उसने अमरनाथ को सेलेक्ट करके दिखाया है. ओके, सो और साइज़ 2 है इसलिए वो थाने और अमरनाथ दोनों दिखा रहा है, और अमरनाथ सेलेक्टेड है. समझा. अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्शन रहेगा तो कैसा लिखने का. ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ वैल्यू. वैल्यू इज़ वॉट, एक्चुअली यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू दिया तो भी वो आउटपुट में वैल्यूज़ का वर्क नहीं करेगा. ये सिर्फ आपको वैल्यू के लिए सिर्फ वो इंटरनली ही रहेगा, आपको दिखाएगा नहीं. लेकिन अगर आपको वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स, आई विल शो यू द एट्रीब्यूट वैल्यू इन हियर. ओके, यहाँ पे दिखाती हूँ. टाइप टेक्स्ट, ये स्टूडेंट नेम लिखा है, यहाँ पे वैल्यू का यूज़ करके यहाँ पे तो वैल्यू देखा था आपने, सबमिट एंड रीसेट. ओके, तो उसी तरह से अगर टेक्स्ट बॉक्स में आउटपुट में पहले से ही वैल्यू अगर फिल करके आना चाहिए तो हम लोग वैल्यू में डाल सकते हैं. जैसे कि सपोज आई एम राइटिंग द नेम दिया. ओके, आई एम राइटिंग वैल्यू इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा दिया, सेव. तो अभी नाम जो दिया है वो आउटपुट में दिखेगा आपको. देखो, आई विल रिफ्रेश इट. सो सी दिया इज कमिंग बाय डिफ़ॉल्ट. ओके, तो ये नाम आप लोग चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू में दिया डाला है तो ये दिया इसको दे उसने आउटपुट में दिया. ओके, बट मोस्टली ये हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि यूज़र इन्फॉर्मेशन फिल करने वाला है, तो हमें नहीं पता होगा कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है. दैट्स व्हाई दिस कैनॉट बी बाय डिफ़ॉल्ट. ओके, सो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. हम लोग ने जो भी अभी देखा, ऑप्शंस के 2 एट्रीब्यूट्स थे, वैल्यू एंड इफ़ यू वांट टू सी द दिस आई विल शो यू यो ऑल्सो. यहाँ पे भी वैल्यू लिखते हैं लेकिन ये वैल्यू आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा. ओके, सी थाने निकल ही गया क्योंकि ऑप्शन जो था थाने वो नहीं दिखा रहा है. ओके, क्योंकि मैंने ऑप्शन से वो निकाल दिया और वैल्यू में डाला, तो इसका वैल्यू ये थाना आउटपुट में नहीं दिखाएगा. दैट इज जस्ट फॉर इंटरनल यूज़. सो ये हम लोग को इंटरनल वैल्यू के लिए होता है. यहाँ पे आप जो लिखोगे वो ही बाहर दिखाएगा, इंटरनल स्टोरेज के लिए रहेगा वो. ओके, दैट्स इट. Okay, so see now the HANA is displayed. Okay, so I hope all these things are clear to you. So this was our last lecture for this
this topic, that is impressive web design. In the next lecture, I'm going to start the new chapter. This is huge. This form is very important for you from the point from 12th standard point of view. Okay, from in 12th standard we are going to study starting this form only. वो वहाँ पे भी हम लोग स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़ने वाले वो HTML का ही फॉर्म का एक्सटेंशन पढ़ने वाले. यहाँ पे जो टैग्स पढ़े उससे एडवांस टैग्स हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं. तो इसलिए आपको बेसिक फॉर्म आना चाहिए. ट्राई टू प्रैक्टिस बाय यूजिंग स्मॉल इनपुट टाइप. स्मॉल जो कंट्रोल्स है जैसे टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, स्टार्टिंग में छोटा छोटा दे के देखो, बाद में ये बड़े कोडिंग्स आप ट्राई कर सकते हो. जैसे कि सिर्फ टेक्स्ट एरिया दे के देखो कैसा आता है, सिर्फ चेक बॉक्स, सिर्फ रेडियो बटन, सिर्फ पासवर्ड एंड टेक्स्ट likewise. Okay, so I hope this is clear to you. So this is all for today. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and enjoy learning.